एंड मैंने कई बार देखा है कि डांटते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, एक तो वो बन जाता है सबसे बड़ा रूट सेपरेशन एंजाइटी का, कि जब आपको डॉग को लगता है पनिशमेंट इज लोनलीनेस। लाइक उसको बोलो कि हाँ हम आ रहे हैं, उसको वो गुड बाय समझ आता है। लाइक एवरी डॉग नोज हेलो कौन बोल रहा है, बाय कौन बोल रहा है, चलो सो भी, दे चलो, नो चलो तो या बहुत problem है। चलो तो चलो। लाइक इट्स 3.6 years नाउ, वो उसी सीट पे बैठता है। नाउ ही इज द पैसेंजर प्रिंस और मैं पीछे बैठी हूँ। I honestly think that it is our inability as humans to understand dogs fully that is resulting into dog bites Correct. in XYZ situation. आप सब एक पेट डॉग की बात बता रहे हैं सर, जहाँ पे वो सो रहा है और आप आके उसको टच करो, दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि आपको कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज डॉग्स आर नॉट इन देयर सेंसेस व्हेन दे आर स्लीपिंग टायरलेसली। Hi everyone, welcome to another episode of Back Talk, where wellness begins with wisdom. Today we have a special fashionista with us who also loves swimming pool, who also loves car rides, and his name is Ozzy. He's a 3.5-year-old golden retriever, and of course her pet mom, Rachna. So hi Rachna, how are you? Hi, I am good. How about you? I'm great as well. So, Rachna, I've heard a lot about Ozzy from my team. I followed him on Instagram, watched his content. Okay. So, tell me one thing that inspired you to become pet parent in the first go. क्या सोचा आपने कि यार dog ले आते हैं घर? So it's like we have been around pets from our childhood, और families में हमेशा मेरे husband के मेरे हमेशा से dogs रहे हैं. So it was like जब हमने शादी की, हम लोग एक साथ थे, तो we were just as a couple. तो घर में कुछ जो शांति वो सब होती है ना, तो we were like कि नहीं यार, कुछ तो emptiness है, कुछ तो है जो नहीं है. And शादी से एक साल पहले ही my husband lost his dog, Oxy. His name was Oxy, तो उसके नाम पे हमने फिर Ozzy का नाम रखा. So that is how we ended up getting him home. Okay, so how old was Oxy? Oxy was 10 or something. So lived his Yeah. whole life. Yeah. And which dog was it? He was a pug. Oh, pugs. So I just love pugs. Like the small little. Yeah. Sometimes I think they're not even dogs. Right. Right. And so my wife has a pug, a Okay. black pug, Okay. and she's so emotional and she talks so much. She tries to talk so much. हम लोग clapping करते हैं तो वो भौंकने लगती है. And बिल्कुल साथ में चिपक के सोती है. So मुझे ऐसे कभी ज़्यादा चांस नहीं मिला ऑक्सी से मिलने का. मैं मुश्किल से 2 या 3 बार मिली होंगी, बट ही इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ. ही वॉज ऑल अबाउट हिमसेल्फ. उसको जहाँ जाना है वो जाएगा. उसको सिर्फ अपनी मम्मा के पीछे पीछे घूमना था. सो ही वाज नॉट इनटू विद माय हस्बैंड इवन. उसको सिर्फ अपनी मम्मा के पीछे 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 पीछे. So we have 2 dogs at home. And the male Shih Tzu, he is always after my wife. वो जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे जाता रहता है. और जो फीमेल है उसे दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता. इट्स अ कोर मॉम थिंग कि बेबी बॉयज हैं तो मम्मा के पीछे जाएंगे. हाँ बिल्कुल. And actually Coco, I think Coco is now sick of me a little bit because क्या है, बचपन से मैंने पाला है कोको को 5-6 साल तक, और मैंने उसके साथ बहुत पार्टी करी है. कोको, माय फ्रेंड्स ओन्ड अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट, तो रात में 2-2 बजे तक वो मेरे साथ बाहर था. फिर 11 बजे उठ रहा है सुबह. तो मुझे लग रहा है कोको ने अपने हिस्से का जो फन था ना वो कर लिया है. अब कोको मेरे से रहता है दूर, कि इस आदमी के पास चला गया तो उन्हें पार्टी कराने ले जाएगा कहीं. अब उसको रेस्ट चाहिए. उसको रेस्ट चाहिए बिल्कुल. So tell me about something about yourself. Are you working? Are you non-working? Yes, I am working in a healthcare professional with a BPO for US. Oh. So I have an evening shift, so it's a bit difficult to manage things. But yes, we can do that because it's a work from home situation. Okay. Yeah. So you have a family at home who takes care of Ozzy when you are not home? Or? No, we are at home because I'm working from home. My husband is working from home, so we are all the time at same place. Oh, so that उससे एक बहुत अच्छा इंट्रीगिंग सा क्वेश्चन निकल के आता है. तो क्या Ozzy को सेपरेशन एंजाइटी है? हमने पहले ऑब्जर्व करा था दैट ही इज बिल्डिंग दैट, बट देन वी ऑब्जर्व थिंग्स स्लोली और फिर उसको समझा, एंड देन वी वर्कड ऑन दैट.
होता क्या था कि वी वर जस्ट लाइक अ न्यूली मैरिड कपल, और हमें घूमने का, कभी कहीं जा रहे हैं, इट्स ऑल हनीमून पीरियड थिंग। तो हमने आगे शादी के 3 या 4 महीने बाद ही वी गॉट ऑजी होम, और हम इसको लेके जाते थे जहाँ भी जाते थे। स्लोली वी अंडरस्टूड कि पहले वाले डॉग्स जो होते थे, जो मम्मास पाल रहे थे, वो उनकी ही सुनते हैं, वो उनके साथ ही रहेंगे, उनको अलग ही नहीं होना था मम्मा से। सो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा ट्रेन तो करना पड़ेगा, बिकॉज कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ हर जगह हम डॉग्स को लेकर नहीं जा सकते, बिल्कुल। चाहे वो फैमिली सिचुएशंस हो, प्रोफेशनल हो। सो वी थॉट ऑफ बीइंग देयर विद हिम, बट हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए बाहर जाते थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमने गैप स्टार्ट कर दिया ज्यादा, लाइक यूजुअल ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं, पहले स्मॉल गैप्स में बाहर गए हैं, वॉक पे गए हैं, उसके बाद हमने 1-2 घंटा उसको स्टार्ट करा। बट व्हेन दैट पीरियड इंक्रीज्ड टू 4 आवर्स, इसने घर में तबाही मचाना शुरू कर दी। एंड दैट इज हाउ वी अंडरस्टूड कि हम जब भी घर पे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन ऐसी है कि कुछ तो फटा हुआ है। घर का सोफा, घर की बेडशीट, टेबल्स, और वी हैव अ स्क्वायर वो टेबल करके, उसके सारे इसने कॉर्नर्स ना ऐसे खा लिए हैं। खाए मतलब ऐसे वो नहीं कि बट तोड़े हैं, लाइक अचीव कर लिए हैं। तो वो वाली सिचुएशन थी जब हमें लगा कि यार देयर इज समथिंग बॉदरिंग हिम। तो हमने उस पर स्टार्ट करा वर्क करना। वी अगेन स्टार्टेड फ्रॉम स्लो थिंग्स, लाइक उसको छोटा छोटा सा टाइमली गैप देना कि हम अभी 15 मिनट्स में आ रहे हैं, रीअश्योरिंग थिंग्स कि नहीं हम आ रहे हैं अभी, गुड बाय बोलना। ही अंडरस्टैंड्स नाउ कि हाँ ठीक है अब जा रहे हैं तो आ जाएंगे। सेकेंडली, मैं हमेशा से ना एक ट्रीट का बॉक्स अपने मेन डोर पे रखती हूँ, सो इट्स अ रिवॉर्डिंग थिंग। उसको मैं बोल के जाती हूँ मैं तेरे लिए ट्रीट लेने जा रही हूँ, तो हम जब भी आते हैं वहीं से उसको बिस्किट निकाल के, एंड ही इज ओके विद दैट कि ठीक है मेरे लिए लेकर आए हैं कुछ तो। सो वैसे हमने इसका सेपरेशन एंजाइटी पे वर्क करा। इट वाज नॉट इवन एग्जैक्टली सेपरेशन एंजाइटी बिकॉज ही वाज जस्ट बिल्डिंग आई थिंक दैट। आपने डेवलप होने नहीं दी, राइट, पहले ही रोक दी। मे बी हमने होने नहीं दी तो नहीं, हम उस टाइम पे समझ रहे थे कि हाँ ये स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से इसको थोड़ा हाँ, तो you did समझते not हैं। let it harvest into Yeah. it. You took precautionary steps. Precautions, yeah. So, for all the viewers that are watching this episode, I always urge that if you ever get a puppy, you have to relate loneliness to happiness. तो होता Correct. क्या है रचना, एक्चुअली शुरू में तो आई हैव इंटरेक्टेड विद मोर देन 5000 पेट पेरेंट्स, एंड मैंने कई बार देखा है कि डांटते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। हाँ. तो होता क्या है, एक तो वो बन जाता है सबसे बड़ा रूट सेपरेशन एंजाइटी का, कि जब आप, तो डॉग को लगता है पनिशमेंट इज लोनलीनेस। राइट, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पेट पेरेंट्स को कि जब भी वो अकेला हो ना, उसे खाना दो, रखाओ, ट्रीट रखाओ, पानी रखाओ, और उसका एक जोन बना दो घर में कि जहाँ वो अकेला कंफर्टेबल है। जैसे हम लोगों का बेडरूम होता है, अगर हमें कोई बोल दे नहीं है बेडरूम, ड्राइंग रूम में सोना है कहीं पे भी, हाँ, तो आप not ठीक है। कंफर्टेबल नहीं हाँ, होंगे। so सो आई थिंक देयर इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उनका एटमॉस्फेयर बना दें और वो खुश हो जाएंगे, बट ये जो पनिशमेंट वाली चीज आपने बोली ना, आई थिंक इट बिल्ड्स दैट हेट एंड हेट रिलेशनशिप, हाँ, नॉट लव एंड हेट। बिकॉज अगर हम उसको बोल रहे हैं हम वापस आ जाएंगे, आप कुछ लेकर आ रहे हो उसके लिए, सपोज आपने वहीं पे ट्रीट रखी, आप वही उसको बोल रहे हो कि मैं ये लेकर आया हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज, उसको वो एटमॉस्फेयर चाहिए, बट आपका एक रीअश्योरेंस भी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं ठीक। आपने उसको बेड दे दिया है, बाउल्स दे दिए, खाना, ट्रीट्स। बिकॉज ये तब हुआ जब हमने इसको धीरे धीरे घर से बाहर हमने जाना स्टार्ट करा, इसको घर पे बिठा के हम ट्रीट्स लेकर जाते हैं, वापस आते तो वो ट्रीट वहीं रखी है। अच्छा, ये स्टार्टिंग में होता था व्हेन ही वाज अ पपी। तो अभी हमें समझ आ गया कि नहीं, ये ट्रीट भी खाएगा, ये सब कुछ करेगा, उसको बस एक रीअश्योरेंस चाहिए कि आप आ रहे हो वापस और आप मेरे लिए कुछ लेकर आ रहे हो। बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोला है, मे बी जो नॉन डॉग पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि क्या बात है, ये कैसे बोल रहे हो तुम। तो इट्स लाइक उसको बोलो कि हाँ हम आ रहे हैं, उसको वो गुड बाय समझ आता है। लाइक एवरी डॉग नोज हेलो कौन बोल रहा है, बाय कौन बोल रहा है, सो दे नो चलो तो चलो, लीश पट्टा सब कुछ पता है। सो इट्स लाइक या वही चीज है कि उनको रीअश्योरेंस सबसे पहले चाहिए, मोर देन कंफर्ट। So you know, I ran a boarding some few years back. I mean, the boarding is still there, but अब वहाँ पे सिर्फ stray dogs हैं। इतने सारे abandonment हो गई, वो commercial boarding बंद हो गया, as a farm बन गया। तो जब भी कोई boarding आती थी ना, तो मेरे पास होता था अनिमेश डॉग छोड़ना है, 15 मिनट में आ रहे हैं। और मैं इतनी बार रीअश्योर कराने की कोशिश करता था, ऐसे नहीं होता। पहले आप एक बार आइए, डॉग के साथ खेलो, यहाँ पे वापस चले जाओ, फिर अगली बार आओ, फिर मैं 1-2 डॉग्स और इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसको यहाँ पे थोड़ी देर आप अकेले छोड़ना, तीसरी बार आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि फिर उसको पता है कि जहाँ आता हूँ तो यहाँ से वापस भी जाता हूँ। तो लोग मुझे बोलते थे अनिमेश अपने बोर्डिंग में डॉग छोड़ा है तो पतला हो गया। मैंने कहा देखिए खाना तो हम दे रहे हैं तीनों बार,
बट क्या वो स्ट्रेस में है? हाँ, दैट एंजाइटी हाँ, स्ट्रेस जब डेवलप, तो अगर ह्यूमन के भी स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो हेल्थ खराब हो जाती है। राइट। तो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट डॉग्स आर कंडीशनिंग एनिमल्स। कुछ भी आदत डलवानी ना, धीरे धीरे डलवाओ, हाँ, एक साथ मत डलवाओ। दैट इज अ फैक्ट बिकॉज ये मुझसे ज्यादा ना मेरे हस्बैंड को इसकी नॉलेज है सारी चीजों की। सो आई वाज जस्ट अ किड, लाइक मेरा माइंड तो वैसे ही चलता है। सो माय हस्बैंड इज लाइक वेरी मैच्योर पर्सन, जिनको एक ज्यादा चीजें वैसे लेनी पड़ती है बीइंग अ बिगर पर्सन इन द हाउस। सो इट्स लाइक उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी इसके साथ हम कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करेंगे। लाइक इवन व्हेन वी प्लान द फर्स्ट ट्रैवल, इट वाज नॉट लाइक कि एक ही बार में हम इसको इतने किलोमीटर्स तक लेके जा रहे हैं। इट वाज ऑलवेज द स्लो प्लान कि छोटे ट्रैवल्स पे लेके जाओ। आप कंटिन्यू। ओके, सो इट वाज ऑलवेज लाइक कि पहले स्मॉल ट्रिप्स लो, सेम डे ड्राइविंग्स ले लो, शॉर्ट ट्रिप्स ले लो। सो इट वाज लाइक दैट। उसके बाद आप उसको इंक्रीज कर सकते हो टाइम। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि हाँ आपने डायरेक्टली उसको ले रहे हैं दिल्ली से बाहर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं एंड देन ही इज नॉट एडजस्टिंग देयर। और फिर आप ये नहीं कर सकते कि हाँ जी मौसम खराब है यहाँ का, बिकॉज वो सिचुएशन खराब है। आप एक ही बार में उसको इतने किलोमीटर ट्रैवल करवा रहे हैं जब वो कभी गाड़ी में बैठा ही नहीं होगा। तो मुझे ना ऐसा लगता है कई बार ना हम लोग अपने इमोशन ह्यूमन इमोशन डॉग पे इन्फेक्ट करते हैं। हमें लगता है आधे 2 घंटे की तो बात है, करेक्ट, वो तो बैठ जाएगा। हाँ, वी डोंट रियलाइज कि वो 2 आवर्स कितना लंबा है उसके लिए। एंड आई ऑफ्टन हियर थिंग्स कि यार अनिमी जिसको ना ट्रैवल करते रहे उल्टी जाती है, डर जाता है, कांपने लगता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले एक्सपीरियंस क्या था उसका? कहते हैं डॉक्टर के पास गए थे, इंजेक्शन लगवा दिया था। मैंने कहा देखो, अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले पॉजिटिविटी से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप डॉक्टर्स पे जाओगे, डेवलप कर सकते हो धीरे धीरे। बट हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ कार रिजल्टेड इनटू अ injections. Right. That must be traumatic for him because ऐसा होना नहीं चाहिए, because we don't have any such injections जो उसकी anxiety दूर करे। Ultimately it's that nausea and वो सब feels जो सबसे पहले इनको आती है कार में बैठते ही। and windows आपकी open नहीं है, आप उनको बंद windows में AC चला के फिर भी लेके जा रहे हैं and they need that air। तो वो आप नहीं कर सकते हो कि ट्रैवल एंजाइटी अगर ऐसे हो रही है तो वो नॉजिया ये सब आपका विद टाइम जाएगा। जब उसको पता है कि वो गाड़ी में यहाँ पे बैठा है, वो एडजस्ट कर सकता है, उसको पता है विंडोज अभी नीचे होंगी, वो करवा सकता है। ही इज वेरी डोमिनेटिंग जब ये गाड़ी में बैठता है। अच्छा, उसकी मुझे अब यहाँ पे विंडो खोल के दो तो मैं यहाँ पे बैठूंगा, अदरवाइज ही जस्ट इतना बड़ा बच्चा हमारी गाड़ी में से रोम कर रहा होता है बिटवीन द सीट्स। सो दैट इज द थिंग दैट ही नोज कि अब मुझे हम इसको फर्स्ट डे से ही जब घर ला रहे थे तो हम गाड़ी में ही लाए थे एंड आज तक लाइक इट्स 3.6 years नाउ वो उसी सीट पे बैठता है। नाउ ही इज द पैसेंजर प्रिंस और मैं पीछे बैठती हूँ। सो या तो रचना, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कंटेंट क्रिएशन के बारे में। सो बिकॉज दिस इज अ नॉलेजेबल पॉडकास्ट आल्सो एंड फन फैक्ट, वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट वॉच्ड कंटेंट इज एनिमल कंटेंट। एनिमल, राइट, ठीक है, और उसमें भी टॉप पे ऑफ कोर्स डॉग्स। या तो आपने कैसे सोचा कि ऑजी का प्रोफाइल बनाते हैं एंड उसमें क्या कंटेंट डालना चाहिए? मतलब वाज देयर अ प्लानिंग और आपने सोचा चलो यार कुछ भी नहीं। इट वाज जस्ट लाइक कि हमने जिस दिन ऑजी को घर लाया था उसके नेक्स्ट डे मैंने इसका एक नॉर्मल ऐसी बिना कुछ सोचे प्रोफाइल बना के फर्स्ट पिक्चर पोस्ट कर दिया एंड वी गॉट लाइक 200 something likes on that picture। मेरी खुद की पिक्चर पे आज तक नहीं आया because I have a private profile। So it is like okay, हम ये कर सकते हैं, मे बी हम इसकी जर्नी स्टार्ट करें या कुछ करें because it was a new thing हम दोनों के लिए as pet parent, जो हम उस टाइम पे बने नहीं थे but we were like कि चलो अगर ये जर्नी स्टार्ट करनी है so it's like a whole lifestyle जो आपका चेंज होने वाला है अभी। चाहे अब वो मान लो आपके एक्सटेंडेड फैमिली ह्यूमंस में हो या डॉग्स में, बट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ स्मॉल किड होम, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या पपी हो, इट्स द सेम थिंग। यू विल हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन एंड वी जस्ट डिसाइडेड कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। हम अगर खुद ग्रो कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट सी कि कितने लोग और होंगे जो कभी पेट्स के अराउंड नहीं रहे बट दे जस्ट एंड अप ब्रिंगिंग डॉग्स एट होम, और फिर उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। एंड वी वर लाइक हम लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी, अब इतना वाइड नहीं थी जितनी मुझे ऑजी के पेज से मिली है, बट इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। जैसे काफी लोगों को पता नहीं होता पपी घर पे आ गया आप क्या देना है, दे स्टार्ट गिविंग किबल्स लाइक फ्रॉम डे वन, क्योंकि उनको जहाँ से उन्होंने पपी लिया है वो ब्रीडर्स ने बोल दिया है या जहाँ से उन्होंने अडॉप्ट करा है उन्होंने बोल दिया हम ये खिलाते थे, तो वो ही कंटिन्यू हो जाता है फॉर न्यू पेट पेरेंट्स। सो वी
वी हैवंट डिसाइड एनीथिंग बिफोर दैट, बट उसके बाद हमने कहा अगर हमने एक पिक्चर डाली है एंड इट इज लाइक पीपल आर लाइकिंग इट, मे बी ठीक है हम स्टार्ट करते हैं. एंड देन स्लोली वी स्टार्टेड दैट फ्रॉम अ पपी जर्नी, कि इनके पी पैड्स का क्या सिचुएशन होता है, कौन से हम परचेज करें. ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था कि ये कभी वर्क करेगा. एंड नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू हिट 9,000 फॉलोअर्स. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या मेरा उसमें. सो आई हैव दिस थिंग कि अगर यार 10K हो गए तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड जो मैंने सोचा ही always celebrate together. We have Yeah. we also have a golden and we have a Okay. lab. And we have around 20 dogs at the farm, so okay. yes. Wow. Birthday party would be a good idea. Nice idea, thank you. So yes, so it was like not into my list ever कि कभी हमने इसका पेज बनाना है या अगर बच्चा घर आया तो हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे. एंड देन अगर कुछ बुरा हो गया तो मेरे मन में लाइक वो टिपिकल इंडियन मॉम की नहीं यार नजर लगी है अब पोस्ट नहीं करना है. सो आई स्टॉप्ड पोस्टिंग फॉर सम टाइम एंड देन अगेन आई स्टार्टेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है चलो, क्योंकि बहुत से लोगों के ना इंटरेस्ट बन गए थे उस टाइम पे व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग अ जर्नी. सो वहां से हमें समझ आया कि ठीक है और भी लोग हैं. एंड बहुत से लोगों की जर्नी से हमें सीखने को मिल रहा था उस टाइम पे, लाइक क्योंकि हमने कभी डॉग पेजेस में इतनी एक्सप्लोर ही नहीं करे. आई गेस अभी अगर हम 9,000 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो वो मैक्सिमम सारे या तो पेट पेरेंट्स हैं या पेट लवर्स हैं या तो खुद पेट्स अकाउंट्स है जो मॉम डैड्स उनके पेरेंट्स चला रहे हैं. सो इट्स लाइक वो वहां से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है. सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है नाउ पीपल आर फॉलोइंग अस. नो, सो इट्स लाइक अ बिल्डिंग एक वो लाइफस्टाइल जो आप दूसरों से सीख भी रहे हो और कहीं ना कहीं वो आप पास ऑन भी कर रहे हो इन्फॉर्मेशन. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड यू नो इट इज स्टिल गोइंग एंड होपफुली इट विल गो. सो वही हमारी कोशिश होती है कि जस्ट पोस्ट समथिंग दैट इज रिलेटेबल फॉर मैक्स ऑफ द पेट पीपल. Yes. So, Rachna, as you said that beginning में you were not feeding kibble to your dog. So, could you just let me know कि आप अभी औजी को क्या देते हैं, आपकी जर्नी क्या रही है फूड में? ओके, सो ऐसा नहीं है कि हमने कभी उसको किबल्स नहीं दिए हैं, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गाइडेड. जब आप एक पपी को घर पे लाते हो एंड आपको जो भी लोग स्पेसिफिकली ब्रीडर्स से डॉग लाते हैं उनको ये बोला जाता है कि नहीं अगर पपी है तो उसको आपने किबल्स देने हैं, आपको उसको ड्राई फूड देना है एंड ही विल बी हैविंग दैट अच्छे से, क्योंकि उसमें एक फ्रेग्रेंस होती है. बट प्लीज ये सब नॉनसेंस है क्योंकि पपीज को उतनी सेंसेस होती ही नहीं है. दे जस्ट ईट जो आप उनको खिलाओगे. सो हमने किबल्स दिए हैं बट जब वो 1 साल का हुआ था एंड दैट इज समवेयर अराउंड जब उसके कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसे आए थे एंड उस टाइम पे हमें लगा कि यार नथिंग इज वर्किंग. बट उससे पहले पपीहुड में वी हैव गिवन सेरेलैक ऑफ कोर्स, वो सब लोग देते हैं. सो वी वर नॉट अवेयर कि उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि 3 साल पहले इतने अच्छे ब्रांड्स थे भी नहीं जो पपीहुड को इतना कवर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मील्स और जितनी भी केयर होनी चाहिए. नाउ वी हैव मल्टीपल थिंग्स. सो उस टाइम पे क्या था कि सेरेलैक दिए हैं, देन हमने सोचा कि नहीं यार ये तो मीठा है ही ना, अल्टीमेटली हम उसकी स्टार्ट ही मीठे से कर रहे हैं. सेरेलैक में हमेशा से शुगर है. सो वी स्टार्टेड अगेन विद होम कुक्ड खिचड़ी एंड दलिया, लाइक लिक्विड फूड. एंड देन उसको थोड़ा थोड़ा सा सॉलिडिफाई करने के लिए उसमें वेजीज डाले हैं, वो सब करा है. एंड दैट इज हाउ नाउ ही लव्स वेजिटेबल्स, स्पेसिफिकली कैरेट, गाजर तो उसका फेवरेट है. सो हमने हमेशा से ये ट्राई किया था कि हम इसको स्पेसिफिकली ड्राई फूड पे नहीं रखने वाले हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक तो प्रोसेस्ड फूड है, उसके बाद डिहाइड्रेशन है, बिकॉज अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ और ऐसा जा ही नहीं रहा है जो उसकी बॉडी की नीड्स हैं. सो वी आर नाउ गिविंग हिम होम कुक्ड properly all the meats and all those non-veg things, because I am a vegetarian so I cannot specify those names. My husband can. So we are giving home cooked all the time and with rice and vegetables and shifting it frequently, changing it उन्हीं सब चीज़ों में जो न्यूट्रिशंस उसके पूरे होने चाहिए. So you know what I do? My wife is also vegetarian and मेरे घर में non-veg allowed भी नहीं है. Okay. तो हमने इनिशियली तो थोड़ा रिस्ट्रेन करा नॉनवेज से, बट मैंने अपनी मॉम को समझाया भी नॉनवेज जरूरी है. हाँ, बट आई ऑल्सो अग्री देयर सम पीपल दैट से सिर्फ मीट खिलाना चाहिए. ऐसा भी नहीं होता. सो आई मिक्स अ लॉट ऑफ वेजीज विद माय डॉग फूड. आई यूज बीटरूट अ लॉट, आई यूज लौकी अ लॉट, कद्दू, खीरा इज देयर स्नैक. राइट. तो Ozzy doesn't like खीरा, he loves carrots. हाँ, so my dog loves cat both. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो ट्रीट्स के फॉर्म में भी ना उन्हें वेजीज ही खिला देता हूँ. राइट. तो कुछ तो अच्छा न्यूट्रिशन जा रहा है. करेक्ट.
body में. Yeah. So abhi my dogs are also majorly on home cooked food. Okay. Thankfully they are very good right now. Yeah. So tell me something. I got to know that your dog also developed a food allergy. Right. What was? We have just recently observed that he was itching constantly, scratches कर रहा था, and I could not hold on to anything. मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है. And मेरी ना एक आदत है, मैं हमेशा उसके फर के बीच में ऐसे नेल से चेक करती हूँ कि क्या उसको है, कोई टिक्स है या कुछ है. And it is usual season जब हमें लगता है कि टिक्स है, but टिक्स कभी भी आ सकते हैं. देयर इज नो सीजन फॉर टिक्स. ये एक मिथ है ऑफ कोर्स. एंड देन जब वो स्क्रैचेस एंड इचिंग इतनी ज्यादा उसकी बढ़ी, तो मुझे लगा मे बी वी आर गोइंग समवेयर रॉन्ग. एंड फिर मुझे लगा कि लेट्स गो टू द वेट. और हम लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हुआ है तो ही जाना है, वो भी नहीं होना चाहिए. सो इट्स लाइक जब मुझे लगा कि इसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि यार कुछ तो करना है, लाइक लेट्स गो एंड देन चेक. सो ही वाज लाइक कि ठीक है, बट मुझे पहले से लग रहा है इसका ना लेट्स स्टिक टू द सेम डाइट, चेंज नहीं करते हैं. बिकॉज कई बार होता है कि एकदम से डाइट चेंज कर दिया एंड वी वर लाइक अभी बोर हो गया होगा, अब कुछ और खिला देते हैं, उसी में कोई ऐसे चेंजेस कर देते हैं मील्स में. देन वी वेंट टू द वेट एंड ही सेड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टिक्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है. बट अगर इतना ज्यादा इचिंग कर रहा है तो मे बी यू हैव समथिंग जो टॉक्सिक हो घर में. कोई ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ भी है, बट यू लाइक नहीं, हम सब कुछ वही यूज कर रहे हैं जो इनके लिए सेफ हो. सो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि इफ यू आर गिविंग ग्लूटेन इन हिज डाइट तो आप सबसे पहले वो रोक दो एंड देन ऑब्जर्व. आप मेरे पास आना भी मत दोबारा अगर आपको उस टाइम पे चीजें चेंज होती दिखती है, बट जस्ट ऑब्जर्व कि अगर आप इसका ग्लूटेन 0 कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो किस तरीके का रिएक्शन है. इचिंग कम हो रही है एंड इट विल टेक एटलीस्ट 3 months. अगर आप उसको रेगुलरली दे रहे हैं तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 months टू रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो इतना स्क्रैचिंग एंड ये सब हो रहा है. सो दैट इज हाउ वी गॉट टू नो कि उस टाइम पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता था. हम तो घर में आके लाइक और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे थे कि मे बी कोई फ्लोर पे कोई ऐसी चीज हो, क्यों कर रहा है, खाने में ऐसा क्या है. बट देन वी रियलाइज कि हमने जितनी इसको ट्रीट्स दिए हैं, जितना हम इसको दिन में खिलाते हैं, most of the things are containing gluten. So it's like its favorite treats are crunchy biscuits, all those crunchy and वो crispy biscuits. और वो हमने बहुत खिलाए हैं to be honest. अभी when we are realizing कि उसको इतनी ज़्यादा itching हुई थी and then कुछ ऐसा पर्टिकुलर हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि उसको एलर्जी है, बट नाउ वी नो क्योंकि उसकी इचिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. लाइक वो कोई स्क्रैचेस नहीं कर रहा है, ही इज नॉट इवन मतलब ऐसे कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं दिखा रहा है. अगर मैं ग्लूटेन की बात करूँ तो मुझे तो आधी चीज़ों में ये भी नहीं पता था कि इसमें भी ग्लूटेन है, उसमें भी है, क्योंकि हम लोग यूजुअली नहीं पढ़ते चीज़ें, राइट. गए शॉप पे, मुझे पता है इसको ये पर्टिकुलर बिस्किट्स पसंद है, चलो ये उठा लिया है, चलो ये खिला दिया है, उसको रिवॉर्ड करना है, उसको ट्रीट्स दे दिया. ऑल द टाइम लाइक आई टोल्ड यू ना कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं उसको आते ही ट्रीट देती हूँ. सो मुझे नहीं पता था ना कि इतनी चीज़ें उसको अब इफेक्ट करेंगी. प्लस हमने हमेशा से सुना था कि डॉग्स ग्लूटेन इंटॉलरेंस होते हैं. सो मुझे नहीं पता था कि ये विद एज भी ग्रो करती है चीज़ें. मुझे लगा था होती होंगी तो मतलब लाइक जीन्स में होती होंगी ना, लाइक अगर वो घर पे जिस दिन से आए हैं उस दिन से होती होंगी, उस दिन से रिएक्शंस होगा. बट नाउ स्लोली वी आर लर्निंग कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग एलर्जीज और इस टाइप की चीज़ें. सो नाउ वी नो कि हाँ ठीक है, हमें ग्लूटेन बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन बिकॉज अर्लियर वी वर डेफिनेटली गिविंग इट अननोइंगली. So, आपने कभी सोचा है कि अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक जब ये एलर्जी हुई होगी तो खैर आपने तो डाइट से ठीक कर लिया इसको, बट डिड द वेट ट्राइड गिविंग एनी मेडिसिन? नहीं, बिकॉज वी बिलीव आवर वेट इज वेरी उनकी तरफ से ये एडवाइस होती है कि जितनी कम मेडिसिन मैं आपके डॉग्स को दूं. दैट इज द थिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर going back to the same vet. I think it's been 20 years my husband is going to the same vet for all his dogs and now we are taking Aussie there. And अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें like 20 years is a very long time कि हमें आज तक वो vet यही बोलते हैं कि वो किसी भी डॉग को उन चीज़ों से ट्रीट नहीं करेंगे जो आपके डॉग की नीड ही नहीं है. सो इचिंग को आप क्या करोगे, आप एंटी एलर्जिक्स दे दोगे, क्या दोगे, बिकॉज आपको नहीं पता वो और रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ही नहीं. उन्होंने पूरा थॉरली उसको चेक करा,
टेम्परेचर चेक करा है, सब कुछ करा है। इवन जैसे मैं बोला, मैं ऐसे पूरा नेल उससे उसको बॉडी चेक करती हूँ, फर चेक करती हूँ। सो दे डिड दैट एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना, यू जस्ट स्टॉप द ग्लूटेन एंड ऑब्जर्व एंड कम बैक टू मी आफ्टर 3 months, बिकॉज ये इट विल टेक 3 months की उसकी बॉडी में जितने चेंजेस आएंगे वो उनको अडेप्ट करेगा, और उसकी सारी ग्लूटेन की चीज़ें जो अभी तक उस पर रिएक्ट कर रही हैं, वो सारा रिएक्शन जाने में वो बहुत नेचुरली जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। सो कोई ऐसा मेडिसिन नहीं थी, और हम लोग ना कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते कि लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट थिंग, हमारा फर्स्ट पॉइंट कभी भी मेडिसिन नहीं होता है। सो इट्स ऑलवेज लाइक नेचुरल, एंड उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, और अगर ये बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है तो क्यों नहीं। तो रचना, व्हेन यू गॉट ऑजी एंड आप वॉक पे ले जाते थे, तो क्या आपने कभी सोचा कि ऑजी को स्ट्रे डॉग्स का फ्रेंड बनवा दे? और लेट मी पुट इट, क्या ऑजी के फ्रेंड्स हैं? यस, डेफिनेटली। हाँ। हम लोगों ने अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जब तक हमारा पपी 6 महीने का नहीं हो जाता, 10 महीने का नहीं हो जाता, हम लोग बाहर नहीं निकालते। उनको जो बाहर के एटमॉस्फेयर से वो इम्यूनिटी मिलती है, वो एक सेंस ऑफ They get used to things. राइट, वो देख सकते हैं कि हाँ, मूविंग व्हीकल्स हैं बाहर, और भी जानवर हैं, और भी डॉग्स हैं, और भी दे स्टार्ट चेजिंग कैट्स एंड रैट्स, वो सब भी है। सो वहाँ से जब हम पपीज को उनके अर्ली एज स्टार्ट करते हैं बाहर ले जाना, वहीं से स्टार्ट हो जाती है सारी चीजें। लाइक अगर आपके कॉलोनी डॉग्स भी हैं तो उनको भी पता देयर इज समवन न्यू इन आवर टेरिटरी, एंड उसके बाद वहां से एक थोड़ा सा बॉन्ड स्टार्ट होता है, बट इट इज नॉट हेट एंड हेट, इट इज लव एंड हेट रिलेशनशिप फॉर मेनी ऑफ द डॉग्स ऑन स्ट्रीट, बिकॉज उनको लगता है मेरी टेरिटरी में नया बच्चा कौन आ गया है। बट अगर आपने वही उनको डेली स्टार्ट कर दिया मिलवाना, एंड नाउ आपकी कॉलोनी में सबको पता है यू हैव अ डॉग, एंड किसी और फैमिली में भी है, सो दे स्टार्ट कनेक्टिंग कि आप कहाँ लेके जाते हो, मैं इस पार्क में जाता हूँ, आप चलोगे। ऐसे करते करते कनेक्शन एक कॉलोनीज में ही बिल्ड हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वी गॉट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम कॉलोनी, एंड उसका बेस्ट फ्रेंड लिव्स द नेक्स्ट डोर, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल टुगेदर। एंड अभी इट्स लाइक अ पॉज, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा बॉन्ड हो गई थी, एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर वाला थिंग हो गया था। सो वी हैव जस्ट गिवन अ स्मॉल गैप, बट वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि जब उसको जिस डॉग से मिलना है वो एक साइन देता है, लाइक ऑजी गिव्स अस द साइन कि मुझे इस डॉग से मिलना और इससे नहीं मिलना। बिकॉज हमें क्या है ना, हम लोग हमेशा से चाहे स्ट्रीट डॉग हो या कोई पेट डॉग हो, कहीं भी अगर हमें पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है कि सामने वाले डॉग का रिएक्शन क्या है, बट हम करें उससे पहले वो चीज ऑजी कर लेता है। सो इट्स लाइक अगर उसने डिस्टेंस पे किसी से मिला एंड ही विल स्टार्ट बार्किंग, वी नो यहाँ नहीं मिलवाना है, एंड उसको एक वो दे सेंस दैट कि मुझे इस डॉग से नहीं मिलना है, या वो डॉग कंफर्टेबल नहीं है, एंड वी फील इट कि नहीं यहाँ पे नहीं मिलवाना है। बट अगर सिर्फ इन पर्टिकुलर आप कॉलोनी डॉग्स की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल जब उन्होंने शुरू से आपके डॉग को देखा हो, एंड स्पेसिफिकली अगर उन्होंने आपसे कभी मिला हो, बिकॉज इफ यू आर डॉग पेरेंट, पेट लवर, तो आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटीज के डॉग्स को जानते हैं, आप उनसे मिलते हैं। इवन यहाँ पे हम इस घर में ऑजी को नहीं लेकर आए थे, तब भी मुझे पता था कि हाँ, मेरे हस्बैंड की कॉलोनी में यहाँ पे कौन कौन से डॉग्स है, लाइक वी स्टार्टेड मीटिंग देम, एंड जब ऑजी आया तो हम लोग नॉर्मल ऐसे रैंडम वॉक्स पे जाना स्टार्ट करते थे, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ट दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर कम्युनिटी डॉग्स एज वेल। तो आप क्या कम्युनिटी डॉग्स को फीड भी करते हो, और डू यू टेक केयर ऑफ देम? Yes, but not regularly, because they are getting their meals 2 times from the NGO. So we avoid overfeeding them. Okay. So yes, ये होता है कि कभी-कभी अभी like we have just started putting water bowls for them, और winters में कभी मैच रख दिए, but it is not for like I cannot take that thing कि मैंने 100 डॉग्स के लिए कर दिया या 200. We have 4-5 particular dogs जिनके लिए हम ये करते हैं. So Rachna, you live in Delhi, right? Yeah. If I'm not wrong. Yeah. So nowadays Delhi में there's a very Chaos. chaos going on regarding relocation of stray dogs. Do you have any opinion on it? Okay, so we have recently worked with an NGO to work on this thing, जहाँ पे कभी order pass हुआ था rehabilitation and relocation का, and now there is a thing that you cannot feed stray dogs anywhere, but we have the rules for that, we have the laws for that, and nobody can कोई उन चीज़ों को break नहीं कर सकता. You cannot stop anyone from feeding a street dog or street animal, be it dog, cat, cows, जो भी हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो फीड? हाउ आर दे गोइंग टू लिव देयर? मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक उनके पास कौन है उनको खाना खिलाने के लिए? इंसान. अभी गाय तो गाय को रोटी लाके नहीं देगी ना, दे कैन नॉट मेक इट. सो इट्स लाइक दे आर रिलाइंग ऑन अस, एंड इट इज हम क्यों वो को एग्जिस्टेंस को अवॉइड कर रहे हैं?
जो चीज भगवान ने बनाई है, और उसके बाद वी हैव दोज लॉज, तो वो हम नहीं कर सकते ना उनको अवॉइड। लाइक आप कैसे एक दिन आके ये बोल सकते हो, लाइक समटाइम्स हमने देखा है कि नेबरहुड में इतनी फाइट्स चल रही होती है, यू कैन नॉट फीड द डॉग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अरे भाई हमने खाना दिया, वो खाना खाएगा, वो खाना खा के चला जाएगा, अगले दिन वो आपको भी कुछ नहीं कहेगा। बिकॉज ये होता है ना, अभी यहाँ पे डॉग बाइटिंग इश्यूज भी इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे उनको फीड करने ही नहीं दे रहे हो। जब तक उसका पेट भरा हुआ नहीं होगा तब तक उस डॉग में अग्रेशन आएगा। एंड सिर्फ अग्रेशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, लाइक रेस्टलेसनेस बहुत राइट। अगर हम भी भूखे हैं तो वी जस्ट फ्रस्ट्रेट। और उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को ये होता है कि कोई भी स्नैप कर लेते हैं। लाइक मैं तो सीधा बोलती हूँ, इट इज नॉट अबाउट जस्ट द डॉग्स, इवन वी आर हंग्री वी स्नैप पीपल। सो इट्स अ इन होम फाइट कि अगर लाइक मेरे और हस्बैंड के बीच में बात हो रही है, आई एम हंग्री एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट फूड, तो मैं स्नैप करूंगी, भैया अब मुझसे बात मत करो, अभी गिव दैट गैप टू मी। वही चीज होती है स्ट्रे एनिमल्स के लिए। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, गर्मी में स्पेसिफिकली उनको पानी नहीं मिल रहा है, विंटर में उनको एक सेफ स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो आपके पास आते हैं हेल्प मांगने, आपने नहीं किया तो दे जस्ट वो स्नैप करेंगे ना। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे कुछ ऑफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। So I'll tell you a very funny incident related to this. So I have a trainer, and he's a very big shot trainer in India. And one day he got a query कि यार अनिमेश, मेरे मतलब कपल था, वरुण, so वरुण is the name of the trainer. He was telling me कि मेरे पास एक क्लाइंट आया एंड उन्होंने बोला कि यार मैं ना, जब भी मेरा डॉग सो रहा होता है और मैं उसे प्यार करने की कोशिश करता हूँ तो वो ना काटने को दौड़ता है। तो हमने उनको बोला कि अच्छा आप ना मेरे को एक बार सोते हुए उठा के दिखाओ जबरदस्ती, तो क्या होगा, मैं चिल्लाऊंगा आप पे, राइट? अब डॉग अनफॉर्चुनेटली बोल नहीं सकता, उसका फर्स्ट वार्निंग इज स्नैपिंग। पहले ग्राउल करेगा, आप ग्राउलिंग शायद नहीं सुन पाएगा, कुछ भी हुआ तो वो स्नैप करेगा। तो इट इज वेरी important to understand the body language of the dog. कि अगर वो stray है या घर का dog है, तो if he is growling, why is he growling? Is he trying to tell you something that he does not like it? Right. Snapping तो मेरे को शायद तब पहुंचेगा जब आप growling वाला सिग्नल समझ नहीं पाओगे। करेक्ट। और इवेंचुअली जब दोनों काम नहीं आते और आप उसको स्नैपिंग पे थप्पड़ मार देते हो तो वो बाइट कर लेता है। और जब बाइट पे आप हाथ छोड़ते हो तो फिर वो और रिएक्शंस तो उसको लगता है अब तो यही है, किसी चीज से बाहर निकलना है, तो बाइट कर लेते हैं। करेक्ट। तो I honestly think that it is our inability as humans to understand dogs fully that is resulting into dog bites in XYZ situation. हाँ, सब में नहीं होता, कभी-कभी dogs में कभी कुछ प्रॉब्लम कहीं पर वो नेचर भी बन जाता है उस जगह पे रहकर उनका। एंड ये आप सिर्फ एक पेट डॉग की बात बता रहे हैं शायद, जहाँ पे वो सो रहा है और आप आके उसको टच करो, दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज डॉग्स आर नॉट इन देयर सेंसेस व्हेन दे आर स्लीपिंग टायरलेसली। बिल्कुल उनके थॉट्स डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं उनके पैर चल रहे हैं नींद में, सो हमें वो कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमने उस टाइम पे उसको हिला दिया है कि नहीं उठो, तुम सपने मत देखो। सो इट्स नॉट लाइक कि हमें पता है वो क्या सपने देख रहा है या वो किस तरीके से अपने पैर मूव कर रहा है। उस टाइम पे वी अवॉइड टचिंग ऑजी स्पेसिफिकली, एंड देन वी सजेस्ट पीपल कि जब वो इस तरीके से नींद में हो, चाहे वो हाथ पैर हिला रहे हैं नहीं हिला रहे हैं, आप उनको कभी भी टच मत करो। वो उठेंगे, यू कैन जस्ट मेक अ साउंड अगर आपको उनको उठाना है, इफ इट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको उनको उठाने हैं क्यों नींद खराब है। राइट। एंड ये सेम चीज ना स्ट्रीट डॉग्स के साथ भी होती है, बिकॉज वी हैव सीन केसेस जहां पे डॉग सो रहा है एंड यू जस्ट थ्रो समथिंग उसको वहां से हटाने के लिए। सो यू हैव ऑल द रोड, लाइक आप कहीं से भी मूव आउट कर सकते हैं, बट आपको उस डॉग को हटाना है क्योंकि वो वहां पे सो रहा है। अगर आप सोते बच्चे को सड़क पे हो या घर में हो, अगर आप उसको उठाएंगे या पत्थर मारेंगे या उसको टच करके बोलेंगे कि यहाँ से हटो, तो रिएक्शन तो मिलेगा। हाँ, तो आई टेल यू दिस हैपेंड इन माय सोसाइटी। There was a dog. Now he lives with me in my farmhouse. So एक गली में, जिस गली में वो रहता था, वहाँ पे there were some people who loved him, but then there were some people who did not like him. तो एक दिन सुबह का इंसिडेंट था, वो सो रहा था and father came with his very young daughter, और उसने यंग डॉटर के हाथ में छड़ी पकड़ाई और उसके हाथ से ऐसे मरवाया डॉग को। डॉग भाग गया उस टाइम। And then after some days I started getting complaints. मैं उस गली का नहीं था, मैं थोड़ा दूर रहता था। I started getting complaints from my friends कि यार यहाँ पे ना इस डॉग के साथ बुरा हो रहा है, इसने ना किसी को बाइट कर लिया और ऐसा ऐसा हो गया। तो जब हम गए, हमने सीसीटीवी देखा तो बाइट नहीं करा था, वो भाग रहा था किसी के पीछे और वो लेडी डर के गिर गई तो उसे चोट लग गई। बट वो बहाना मिल गया पूरी सोसाइटी को, तो उन्होंने बोला कि देखो बहुत एग्रेसिव है। तो मैंने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज जब चेक हो रही थी तो मैंने
उस दिन मॉर्निंग की फुटेज देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हाँ तो और उसी दिन शाम को ये सीन हो गया। तो but then people got aggressive, someone even threatened to but shoot the you are dog. making him lose his trust हाँ. from humanity. हाँ, तो someone even tried to shoot him. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ले जाता हूँ। अब मेरे फार्म पे रहता है वो। There is one crazy thing here in our situation. हमारे पास एक बाहर जो बच्चा रहता है उसका नाम भूरू है, एंड हाउ डिड इट हैपन, लाइक एक दिन ऐसे दिवाली के आसपास ना आई नोटिस दैट डॉग, और उस टाइम पे ऑजी आया ही था। आफ्टर लाइक 4-5 months आई नोटिस दिस डॉग जो न्यू था, हमारी कॉलोनी का नहीं था, एंड उस टाइम पे ना ये रिलोकेशन थिंग बहुत ज्यादा हो रही थी ओवरनाइट। लाइक हमारी कॉलोनी के डॉग्स कभी कहीं चले गए हैं, वापस नहीं आए हैं, कोई नया डॉग हमने नोटिस कर लिया है, एंड ही इज वन ऑफ दोस्त जो डे 1 से रिएक्टिव था। वो इस कॉलोनी में आया एंड ही वाज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, कभी फूड के लिए, कभी किसी के लिए, एंड उस टाइम पे ना मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस टाइम पे आया मैंने उसको उसी टाइम पे शायद नोटिस करा, एंड आई गिव हिम सम शॉर्ट मील की छोटा सा कुछ है उस टाइम पे खा लेगा, एंड उसके बाद से नेक्स्ट डे ही वाज जस्ट सिटिंग एट माय डोर। और आज 3 साल हो गए हैं भाई साहब को, वो कभी वहां से मूव नहीं हुए, बट इट वाज अ रिलोकेशन केस दैट वी गॉट टू नो, एंड आफ्टर दैट ही वाज थ्रोन अवे फ्रॉम माय डोर 3 times later on. And he came back? Yes, we fought for it. Good to hear. We fought for it because बहुत बार ऐसा हुआ कि वो बच्चा सड़क पे रहता है, उसको खाना नहीं मिलता है, बहुत सी चीजें होती हैं, एंड मुझे नहीं पता उसको किसने किस तरीके से हमारी कॉलोनी में छोड़ा होगा एंड किस सिचुएशन में, बट वी आर अज्यूमिंग कि मे बी इसका रिएक्टिविटी है जो इसको इन चीज़ों पे लैंड करता है, एंड देन हम लोगों ने वो चीज़ समझा कि चलो ठीक है, अगर एक रिएक्टिव बच्चा है उसकी केयर कोई नहीं कर रहा है, वील जस्ट फीड हिम थोड़ा सा ना, क्या हो गया उसमें। तो जब हमने वो स्टार्ट करा, हम उसको फीड कर रहे हैं, एंड देन वी गॉट इनटू लाइक टू मेनी ट्रबल्स कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि आप इसको क्यों खिला रहे हो, ये काटता है। अगर वो काटता है और उसको हम नहीं खिलाएंगे तो वो और काटेगा आपको। बट येस, सो ही इज सिटिंग एट माई डोर नाउ, एंड अभी भी उसकी रिएक्टिविटी पे हम वर्क कर रहे हैं, लाइक वी आर पर्सनली वर्किंग ऑन इट, बट अभी नहीं तो कभी उसके साथ कोई ना कोई गलत चीजें होती हैं, लाइक कभी किसी और ने उसको रिलोकेट कर दिया ओवरनाइट एंड वी डोंट नो कि क्या हुआ है, सो वो चीजें भी हुई हैं। एंड देन मैंने एक बार नोटिस करा था, लाइक ही इज अ वेरी रिएक्टिव डॉग, बट उसमें ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है अबाउट नोइंग थिंग्स, लाइक अगर ये गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है, ये बंदा उतरा है, तो ये कौन है, ये इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, इसको घर में नहीं आने देना है, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि ऑजी के पास वो किसी को नहीं आने देता है। सो वी विल हैव टू टेक दैट प्रिकॉशन जब किसी को घर में आना हो, बट नाउ अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि मल्टीपल टाइम्स वो जब इतना उसके साथ चीज़ें हो गई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, ही इज नॉट चेंजिंग हिज बिहेवियर, क्योंकि अभी उसका इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट दोनों चीज़ें ह्यूमैनिटी से तो उठ चुकी हैं। This is very sad to hear when such incidents happen, and humans being the most intelligent species, and still we are doing all these things. It's very surprising. So Rachna, serious talk तो बहुत हो गई. Now let's do a rapid fire round. Okay. ठीक है. So Rachna, hi. Let's start the fun rapid fire round, and I think Ozzy would like to interfere. I said no, I will play rapid fire with you. अच्छा कर ले भाई, तू पहले कर ले, चाटना है चाट ले, हो गया? Happy, बस। So that's not question number 1. Ozzy's go-to travel destination. Lawns and parks. I cannot name one specific location, so yeah, parks. One travel essential for Ozzy you never forget to carry. His food. Bandana or bow tie. Everything, because he loves wearing. One treat Ozzy can't resist. Lamb treats specifically. Cutest thing he does every day. This hug thing. Oh yes, he understood. You understood. Ozzy, good boy. Next question. One pet parenting hack you swear by. Go slow. Absolutely, I loved it. I love this one. If Ozzy could talk, what is the one? What would be the first word that he would say? Nikal to me, and dad के पास जाने के लिए he can do that. One human habit Ozzy secretly judges you for. Giving him
घर वाला खाना, लौकी घिया and all that. Which Bollywood or Hollywood actor would Aussie totally vibe with? Ranveer Singh, he's that energetic. So this was the end of rapid fire, Okay. and this is the end of the episode. And I hope you guys liked it. It is very important that when we get a pet, we understand that it is very important to socialize her with other community dogs. Also take care of other community dogs and do not do partiality. Yeah. कि ये हमारा है तो Correct. इसको सब मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, yeah. नहीं मिलेगा. And be a responsible pet parent. Read about dogs. Like as Rachna said, we would not like to go to a doctor. We would rather try to solve the problem at home. And by saying that, I mean know what the problems are, know what is good for him, know what is right for him. Read the labels and read the science behind how dogs learn, how dogs get sick, and everything else related to it. So do like, share, and subscribe. And before we end this video, I would like to say thank you to Rachna. Thank you for hosting being us. here. Thank you. And I hope you liked the episode. And we also have a small hamper for you. This is a care kit, so Okay. Prevention from ticks, from skin infections, Right. and a multivitamin powder that includes moringa. Okay. So moringa is very good for dogs. Called Sahajan, Right. and उसमें अश्वगंधा भी है. तो Right. for overall. So I've seen those products of yours, and Okay. I'm very curious to know कि हाँ इतनी सारी चीजें इसमें हैं, and all those things जो मम्मी बोलती हैं कि किचन में है. हाँ, exactly. So this is Ayurveda. Ayurveda Yeah. is science of life. Right. And we believe that if we can harness the power of Ayurveda, we will not have to go to doctors much. Correct. Correct. And that's something that I personally want from my dogs. I'm sure you do too. Right, And I'm right. sure you guys also do. So thank you for watching this episode.